Now, what triggered this comparison? A man in Muzaffarnagar claimed that he was forced to pull down his pants to prove his religion. His name? He claimed his name was Gopal. He was employed at a dhaba on the Kabad route. But here's the catch. As per sources, when this man was asked for an Aadhaar card, he claimed that he had lost it. No ID, no phone. The police later traced his Aadhaar card and found that his actual name was Tajammul. His father's name wasn't Suraj, it was Maqsood. Now, the accused in this case, Yashveer Maharaj, has denied that he or his men forced anyone to strip. The police have issued notices to 6 individuals, including the accused, Yashveer Maharaj, for demanding IDs from food sellers. The investigation continues, but this incident has exposed a larger issue. Fake identities being used on the Kanwar Yatra routes. Listen in to the versions. क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। गोपाल, क्या काम करते हो तुम? यही काम करूँगा, होटल पर रहूँ। होटल का काम। क्या हुआ? अभी हिंदू संगठन के लोग आए थे यहाँ। अभी इन्होंने 5 तारीख पहले आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। अब क्या नाम मुझे नंगा करने को, अब नू देख रहे मुसलमान हो क्या हो या तू, मैं हिंदू झूठ बोल। अलगाव या धार्मिकता कुछ नहीं होता है। उन्हें अपनी कुर्सी का है, उन्हें अपनी कुर्सी प्राप्त करने के लिए वो सनातन धर्म के खिलाफ चले जाएं, इस भारत राष्ट्र के खिलाफ चले जाएं। ऐसे नेताओं से, ऐसे लोगों से सनातन धर्म के लोगों को सावधान रहना है। मैनेजर है यहाँ का, मगर हाजी साहब मैनेजर और मैं मैनेज कर रहा हूँ फिलहाल। तो बड़ा वो कर रहा तरफदारी, उसकी पैंट नहीं खोली, मगर साहब यहाँ पैंट किसी की नहीं खुली। मैं 24 घंटे यही हूँ और साहब कोई झूठ सच की क्या गुंजाइश, सच बोल रहा हूँ, मेरे सामने कुछ भी ऐसी घटना नहीं हुई। Now, the political jabs have turned ugly. SP leader ST Hassan and MLA Ravidas Mehrotra have now compared this incident to the Pahalgam terror attack. Ravidas Mehrotra even went as far as to say that there is no difference between BJP leaders and terrorists. Remember, Hassan had yesterday created a storm that even in Pahalgam, terrorists made people pull down their pants. Now, this comparison between an act of Pakistan-sponsored terrorism and local law enforcement directives has sparked widespread outrage. समाजवादी पार्टी के नेताओं का मानसिक संतुलन पूर्ण तरीके से बिगड़ चुका है और चुनाव हारने की और बिहार में चुनाव में जो नतीजे आने वाले हैं उसकी फ्रस्ट्रेशन में अब समाजवादी पार्टी किस प्रकार के बयान दे रही। पहले कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को गालियां देना और अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता, उनको आतंकियों से तोल रहे हैं, उनकी तुलना आतंकियों से कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी इक्वल्स टू टेररिस्ट। बीजेपी की तीसरी बार कंटिन्यूसली सेंटर में सरकार बनी है। क्या जनता ने टेररिस्ट को वोट दिया? ये जनता के विवेक का अपमान है। मैं कल से चैनल देख रहा हूं, बहुत साफ कर दूं, कंवरियों की सुविधा बढ़ाई जाए, पर सर्वोच्च न्यायालय ने जब स्पष्ट कर दिया है, गाइडलाइन दे दी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कोई सरकार उसके ऊपर जाकर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकती। अब सरकार तो छोड़िए, मैं देख रहा हूं कुछ स्वयंभू नेता अपने आप को किसी जात, बिरादरी, धर्म, किसने बना दिया इनको, और वो जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लोगों में भय, आतंक पैदा करके वो हर हाल में झगड़े चाहते हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये क्या है? So why are these checks needed, viewers? It is because of the instances where food outlet owners were hiding their identities. For example, the Kanha Shyam restaurant. The board gives the impression that it is owned by a Hindu, a place that pilgrims observing certain rituals can trust during their Amarnath Yatra. But look at the name displayed on the payment scanner, Saleeman Qureshi. Last year too, similar instances of name fakery were reported. From the Congress to the AIMIM to the SP, all echo the same sentiment against the BJP government's Kanwar checks diktat. Listen in to the war of words that has been playing out. क्या किसी भी सिविलियन को ये राइट है कि किसी दुकानदार की चेकिंग कर ले और चेकिंग करके वो पैंटें उतरवा के देखे? पहलगाम के अंदर आतंकवादियों ने पैंटें नहीं उतरवाई थी। ये इस तरह से ये भी टेरराइज कर रहे हैं, उन्होंने गोली मारी थी, यहाँ सिर्फ टेरराइज कर रहे हैं, तो मैंने क्या गलत कह दिया?
ये नाम छुपा के रखने वालों के साथ आप लोग क्यों खड़े रहना चाहते हैं? सीधे, साफ और सपाट तरीके से, पारदर्शी तरीके से जो सरकार का नियम कहता है उसके अनुसार आपको नाम डिस्प्ले करने में क्या प्रॉब्लम है? मुस्लिम धार्मिक भावनाओं की कदर करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट होता है कि वो हलाल करने वाला भी मुस्लिम होना चाहिए। गैर मुस्लिम ने छुआ है तो इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह अपवित्र हो जाता है, वो पवित्र नहीं है। क्या उसका सर्टिफिकेट सरकार देती है? With that, let's get to the breaking update coming in. Muzaffarnagar police has served a notice